ہے وہ آج بنو میں 4 افراد کو گولیاں ماری گئی ہیں. کل چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا تھا اور کل ہی جو ہے وہ کے پی کے 7 اہلکار جو ہیں ان کو اسلحہ سمیت اغوا کر لیا گیا تھا اور غالباً ابھی تک ان کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا. اور باڑہ کے علاقے میں بھی جو ہے وہ دستی بم سے حملہ ہوا, اس میں بھی ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوا. اور دوسری طرف جو ہے جو اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر الجہاد الجہاد کے نعرے لگوا رہا ہے اور پاکستان کی ریاست کے خلاف تمام سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اعلان جنگ کرنے کی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے ان تمام پختون میرے بہن بھائیوں کے لیے کہ جن کے وسائل جو ان کی تعلیم صحت کے اوپر لگنے چاہیے, جو وقت اس وزیر اعلیٰ کا اپنے صوبے کی عوام کی بھلائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے, وہ دہشت گردوں کی یا تو سرپرستی کے لیے یا آج کل جو ہماری باپردہ غیر سیاسی خاتون ہیں بشرا بیگم صاحبہ, ان کی مہمانداری کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اور وہ کل آپ نے ایک سن ہی لی ہے, ایک آڈیو جو ہے ایک غیر سیاسی خاتون کی ایک آڈیو آئی ہے, اس کے 2-3 حصے بڑے امپورٹنٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اگر تھوڑی سی آپ خاموشی فرما دیں تو ذرا پہلا کلپ جو ہے وہ ذرا پلے کیجئے جی. ذرا روک دیجیے. اب اس میں وہ جو ایک بیانیہ تھا نا, جو ایکچولی یہ مکافات عمل ہے, عمران خان جو دوسری پولیٹیکل پارٹی کی خواتین اور دوسرے لوگوں کے لیے جو کارڈز استعمال کرتا رہا, آج وہ مکافات عمل کے تھپڑ کی شکل میں اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ آ رہا ہے. جو کل تک موروثی سیاست کو گاتا تھا, آج اس کی اپنی بہن اور ان کی اپنی بیوی جو ہے وہ, یہ بھی عجیب ڈرامے بازی ہے. ایک طرف غیر سیاسی ہیں, او بھائی غیر سیاسی خاتون سیاسی تقریر کرتی ہے, غیر سیاسی خاتون جلسوں کی جلوسوں کی پلاننگ کرتی ہے, غیر سیاسی خاتون جب تک وہ غیر سیاسی آڈیو آنے سے پہلے آپ سب لوگ بھی سمجھتے ہوں گے بڑی غیر سیاسی خاتون ہے, باپردہ خاتون ہے, لیکن یہ غیر سیاسی خاتون اس وقت بھی غیر سیاسی نہیں تھی جب ان کو غیر سیاسی کہا جا رہا تھا. وہ ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وہ جو ہے وہ ایک وزیر اعظم پاکستان کو, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کو ریموٹ کنٹرول کے اوپر چلا رہی تھی کہ کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کتنے بجے جو ہے وہ کھانا کھانا ہے, کتنے بجے کیا نہیں کرنا, کس کو ملنا ہے, کس کو نہیں ملنا, کون سیکٹری لگے گا, کون وزیر اعلیٰ لگے گا. یہ پھر ارسلان بیٹے سے جو غداری سے وہ لنک کرایا کرتی تھی مخالفین کو, یہ بھی ان کا غیر سیاسی کارنامہ ہوتا تھا. اور آج تو ایک یہ آپ ثبوت دیکھ رہے ہیں کہ وہ غیر سیاسی خاتون مکمل طور پر ٹارگٹ دے رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں ہر ایم پی اے جو ہے وہ 5,000 بندہ لے کے آئے گا اور ایم این اے جو ہے وہ 10,000 بندہ لے کے آئے گا. جتنی موصوفہ نے کیلکولیشن کی ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کی کیلکولیشن ان کی تعلیمی قابلیت کے عین مطابق ہے. ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ جتنے جو کیلکولیشن میں لوگوں کو دے رہی ہے اتنی ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے پورے ملک کے اندر جو اتنے لوگ ڈھو سکے. لیکن وہ اور پھر وہ بتا رہی ہیں کہ کون اس کو ٹیک اوور کرے گا, پھر گرفتاریاں ہو جائیں گی. سیاست میں حصہ لینا کسے کہتے ہیں؟ سیاسی تقریر کرنا سیاست میں حصہ لینا ہے نا, سیاسی پلاننگ کرنا سیاست میں حصہ لینا ہے نا, اپنے پارٹی کے ممبران کو انسٹرکشنز دینا, ان کو پارٹی سے نکالنے کی ہدایات دینا سیاست میں حصہ لینا ہی ہے نا. اس کے بعد پھر معصومیت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نہیں سیاست میں حصہ نہیں لے رہی, سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بھائی یہاں لطیفے سنا رہی ہیں وہ بیٹھ کے, یہاں پہ کوئی ہانڈی میں آلو گوشت پکانے کی تقریب بتا رہی تھی وہ ایم پی ایز ایم این ایز کو بٹھا کے. اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اپنے پنجاب کے ان ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے ہے جن غریبوں کو آل دا وے بلایا گیا,
उनमें से किसी को बात तक करने की इजाजत केपीके के अंदर नहीं मिली। उस हॉल के अंदर जहां पे बंदे ने उसके ऊपर एहतजाज किया, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया गया। तो ये हालत है उस एजेंडे की, जिस एजेंडे के ऊपर ये पाकिस्तान के अंदर फितना और फसाद पैदा करना चाहते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, दूसरा जरा इनका ऑडियो क्लिप चलाएं। एक मिनट रोकिए जरा। या तो मुझे लगता है कि बुशरा बीबी साहिबा बहुत घाघ पुरानी सियासतदान है, या ये सामने कच्ची जमात के बच्चे बैठाए हुए थे उन्हें, जिनको नहीं पता कि पॉलिटिकल जो कैंपेन है वो कैसे होती है, सियासी जलसा जुलूस कैसे करते हैं। वो बाकायदा मतलब बता रही है बच्चों की तरह, प्यारे बच्चों आपने लोगों को गाड़ियों में बिठाना है, फिर उसकी वीडियो बनानी है, फिर मुझको प्रिंसिपल को भेजनी है, और फिर जो है मैं आपके नंबर दूंगी कि आपके कितने नंबर है, और उसके बाद आपका पार्टी में रहने या ना रहने का फैसला होगा। और ये पूरी प्लानिंग। फिर उसके बाद एक और भी क्लिप है, जरा वो भी चलाएं जी, जिसके अंदर वो कह रही है कि हमारे मशहूर जमाना यूट्यूबर्स और इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखें। अब मुझे ये बताएं, कोई घरेलू खातून, गैर सियासी खातून, उसको ये तमाम जुजियात का पता होता है? वो बेचारी घरेलू खातून जो होती है ना, तो सच्ची मुच्ची घरेलू खातून होती है, वो तो अपने घर के मामला से नहीं निकलती, बच्चों के बारे में कि बच्चों के मामला क्या है घर में। आज वो तो यही सबसे बड़ा मसला हल नहीं होता, गैर सियासी और घरेलू खातून का, क्या आज घर में पकेगा क्या। ये घरेलू खातून हमारी प्यारी गैर सियासी खातून जो है, जो वो पूरा का पूरा एक प्लानिंग जो है वो बता के दे रही है अपनी पार्टी के लोगों को, जो साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो सारे अच्छे बच्चों की तरह लाइन में लग के बैठे हैं, और जो कल तक जो है वो मरियम नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो बात करते थे कि वो देखे ना जी वो जूनियर हैं, तमाम सीनियर्स जो हैं वो उनके सामने बैठे होते हैं, वो फिर भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए आई। ये खातून ये तवीज़ गंडों के जरिए आई, और तवीज़ गंडों के जरिए जो है मौकलों के सर के ऊपर वो यहाँ आके बैठ गई। और अब जरा चलाएंगी, जरा वो तीसरा वाला भी चलाएं। अच्छा, अब इसके अंदर भी दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पहले तो हमेशा की तरह मजहब कार्ड, वो जो खत्म है बीबी साहिबा पे खेलना, और वही उन्होंने सिखाया इमरान खान को भी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक जुमला था वो है मशहूर जमाना मीर जाफर मीर सादिक, सुना होगा आपने पहले भी कही। और अब आपको ये भाम हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए कि ये मीर जाफर और मीर सादिक की टर्म जो है ये कहां से आई थी, ये किसने इजाद की थी, और किसने इमरान खान को सिखाया था ये बोलने के लिए कि अपनी क़ियादत है उस वक़्त की, जो इनको अपने कंधों पर बैठा के लाए थे, उनके खिलाफ जो है ये जुमले जाके वो इस्तेमाल करें। और ये एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी लोगों ने खुद निकलना है, लोग बड़े चार्ज हैं, खान की लब्बैक कह रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं लोगों को बार बार के गाड़ियों में लाओ और साथ वीडियो भी बना के लाना। अगर लोग खुद निकल रहे हैं तो फिर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, फिर आपको इस तरह से लोगों को जो है वो फोर्स करने की जरूरत नहीं है। और बाय द वे चंदा इकट्ठा प्रोग्राम जो है वो तो आपको पता है इस पार्टी पे वैसे ही खत्म है, इधर कोई जो है वो एक्टिविटी शुरू होती नहीं, ये मांगते पहले जो है वो चल पड़ते हैं। और अब भी जो है वो कोई अपने ओवरसीज जो है उनसे भी पैसे मांग रहे हैं, ये एमपीज एमएनएस को भी जो है पैसे मांगने के लिए कहा गया। और मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक 1 रुपया जो है वो इनका इकट्ठा नहीं हुआ।
जो इन्होंने इस फितना फसाद के ऊपर लगाना। और बाय द वे पिछली दफा पंजाब असेंबली की ऑपोजिशन लॉबी के अंदर बाकायदा हाथापाई हुई थी, एक दूसरे को मारा गया था जब पैसों के हिसाब किताब और पैसे मांगने की बात की गई थी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन बहुत हैपनिंग होंगे और इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज और चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कल मैंने सुनी, मुख्तलिफ जो इनके रहनुमा हैं उन्होंने कहा हम सरप्राइज देने जा रहे हैं, हम कुछ नया करने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि असला लेके तो आप पिछली दफा आ गए थे, आंसू गैस शेल भी आपने चलाए थे, रबड़ की बुलेट्स भी आपके पास थी, गुलेले भी आपने उसके अंदर कांच के टुकड़े डाल डाल के पुलिस वालों को मारे थे। इस दफा नया क्या होगा? ये सब तो आप कर चुके हैं। इस दफा नया ये होगा कि वो जो सियासी कजन की सिखाई हुई आपकी एक रिवायत है कि आपको लाशें इकट्ठी करनी, और हमेशा इन्होंने लाशें इकट्ठी करने का प्रोग्राम बनाया। वो बेशक वो 25 मई का लॉन्ग मार्च हो, वो बेशक वो वजीराबाद का वाकया जिसके अंदर आपको पता ना कपड़ों के अंदर से गोलियां निकल निकल के उछल उछल के बाहर जा रही थी, वो पता नहीं किस चीज की गोलियां थी जो कपड़ों में से निकल निकल के जा रही थी और वो हुआ किसी को कुछ भी नहीं था उसमें से। वो जो है वो हर जगह पर इनका जो अब नया है वो नया सिर्फ कत्ल जो है वो कराने और दहशत गर्दी करना ही एक नई चीज है जो इनके इसके अंदर हो सकती है। बहरहाल हुकूमत जो है वो उसको सब मालूम है, हम सब देख रहे हैं। और बाय द वे आज गंडापुर साहब जो है वो अडयाला भी तशरीफ लेके गए थे और मीडिया से बगैर बात किए जो है वो चले गए। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, खुद बता देंगे तो ठीक है, वरना हम तो है ही हैं आपको बताने के लिए कि वहाँ क्या बातें हुई और किस किस का पैगाम वो लेके गए थे और क्या क्या गिट्टे गोड्डे पकड़ने के लिए जो है वो पैगाम दे के भेजे गए हैं। और आखिरी जो बात है वो ये है कि ये जो 24 नवंबर है, ये 24 नवंबर भी किसी प्लानिंग के साथ जो है वो आखिरी कॉल के ऊपर जो है वो किया जा रहा है। आपने जब मैंने इनकी आखिरी कॉल सुनी ना तो मुझे यकीन माने वो एक वो है ना कहानी, शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया, वो हर दफा कहते थे शेर आ गया तो शेर आता नहीं था, जिस दिन शेर आया था उस दिन पता नहीं चला था। तो ये इनकी जो मिस कॉल है ना, ये मिस कॉल्स दे रहे हैं जो पाकिस्तान की अवाम को, जिसको पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। और खास तौर पर पंजाब के लोगों ने इनकी मिस कॉल हो, इनकी आखिरी कॉल हो, इनकी पहली कॉल हो, इनकी मंजली कॉल हो, किसी भी कॉल के ऊपर कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। और उसकी रीजन है, उसकी रीजन यह है कि आम आदमी जिसके मसाइल उसके दहलीज पर हल हो रहे हैं, वो आदमी जिसके महंगाई आज बाय द वे हफ्तावार महंगाई जो है वो 4% पे आ गई है। ये मैंने अभी जो है वो देखा, 4% पे हफ्तावार महंगाई जब आ गई है, जब लोगों के हालात बेहतर होने शुरू हो गए हैं, जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है, जब बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे जो है वो हो रहे हैं और लोगों को रिलीफ घरों पर बैठ के मिल रहा है, तो पंजाब के लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ये सिर्फ चंद सरकारी मुलाजमीन जो केपीके से जो है वो लाए जाएंगे। बाय द वे मैं उसको वेरीफाई करना चाहती थी इसलिए मैंने वो आपको नहीं दिखाया। एक मैंने देखा है एक डॉक्यूमेंट मुझे मिला जिसपे चीफ सेक्रेटरी साहब जो है उनकी तरफ ये डॉक्यूमेंट भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि शायद पिछली दफा 80 करोड़ रुपए के करीब जो है वो खर्चा हुआ था इस लॉन्ग मार्च या जो भी मार्च ये कहते हैं उसके अंदर। और उस खर्चे के बारे में वो गालिबन वो लेटर था, मैं उसकी तस्दीक जो है वो तस्दीक करना चाहती हूँ। तस्दीक करने के बाद इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर भी करेंगे। तो ये जो तमाम तैयारी जिसको ये कह रहे हैं हम तैयारी करके आ रहे हैं और ये जिहाद करने आ रहे हैं, एक बात बड़ी कैटेगोरिकली इनको पता होनी चाहिए, रियासत के खिलाफ जिहाद नहीं हो सकता। और जो रियासत के खिलाफ जिहाद करता है उसका अंजाम फिर रियासत जो है, रियासत से ना बड़ा कोई होता है ना हो सकता। और इमरान खान खुद अपने होते हुए कभी भी जो है वो लाखों लोग इकट्ठे नहीं कर सका। उनको लगता है बुशरा बीबी जो है ये वो कह रही है 5 लाख लोग हम इकट्ठे कर लेंगे। बाजी आपके मियाँ जो है वो जब वो बड़े अपने आप को लीडर समझते थे वो तब भी 5 लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सके थे। तो 25 मई का लॉन्ग मार्च हो, वो बेशक आर्मी चीफ की तकरीरी रोकने का लॉन्ग मार्च हो, या वो मुख्तलिफ और तरह के जो 2014 का इवन लॉन्ग मार्च था जिसमें सियासी कजन के साथ आप औरतों और बच्चों को ढाल बना के लाए थे, अब तब भी 5 लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सके थे। तो भले वक्तों में आप पूरी सपोर्ट के बाद भी 5 लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सके। अगर आपका 5000 बंदा आ जाए मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।